Hello friends, welcome to Pi5 Study YouTube channel. Today we will learn about inverse function, mapping, one and onto function, monotonic function. तो आज के इस मॉड्यूल में हम आपको बताएंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मैपिंग क्या होती है। तो आइए देखते हैं हाउ वी कैन solve the question related to this type of concept like inverse function and what are these type of function, how we can know which type of function is inverse and how we can find the inverse of given function. Let us start. So inverse function is nothing but if you have y equal to fx, then write the y equal to fx in terms of y, like in this case y is equal to fx, so y is in terms of x, and if you write x in terms of y, then it is inverse function of y. So inverse means x is equal to f inverse y. Step second, like if y is equal to x plus 1 divided by x, y is equal to x minus 1 divided by x plus 1, so y is written in terms of x. So if you will do some mathematical arrangement, then you can write x is equal to 1 plus y 1 minus y. So in this way you can find out the inverse of the given function. And third step, so first and second step, so first you have to do the first step, then you have to find out the second step using some arrangement, then third step is the value of f inverse y is equal to y plus 1 upon 1 minus y. दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि जो आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई आया वो फंक्शन ऑफ y है, लेकिन उसकी वैल्यू x के इक्वल है, और x के इक्वल क्या है, f इनवर्स y है। x इक्वल टू क्या है, f इनवर्स y है, और x इक्वल टू क्या है, 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस वाई। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। in this way just replace y by x, so you can write f inverse x is equal to x plus 1 divided by 1 minus x. So let us solve one questions. If any function fx is equal to e to the power x, then find the inverse of this function. So first step is, what is first step? Assume fx is equal to ex is given, assume fx is equal to y, so y is equal to e to the power ex, take the log of both sides, then log y base e is equal to x. Now x is equal to log y base e, then the log y base e is the function which is equal to x, and x is equal to f inverse y. So f inverse y is equal to log y base e. Now you have to find out the f inverse x, so replace x by y. So the inverse of the given function is f inverse x is equal to log e x. Next, if y is equal to 10 to the power x minus 10 to the power minus x divided by 10 to the power x plus 10 to the power minus x, so do the sum arrangement and get this type of function 10 to the power 2x minus 1 divided by 10 to the power 2x plus 1. Then solve this term, like how you have to solve this type of question, this type of arrangement. See the second line, y is equal to 10 to the power 2x minus 1 divided by 10 to the power 2x plus 1. So just keep the common
common 10 to the power 2x in one side and y in the other side, like this. 10 to the power 2 is equal to y plus 1 upon 1 minus y is equal to 1 plus y upon 1 minus y. Then take the log, then you can write x is equal to 1 by 2 log 1 plus y upon 1 minus y base 10. So in this case, and x is equal to f inverse y, and f inverse y is equal to now 1 by 2 log 10 1 plus y upon 1 minus y. So f inverse y is equal to this. So f inverse y is equal to x and equal to 1 by 2 log 10 1 plus y upon 1 minus y. So replace y by x. So you can get the inverse of f inverse x is equal to 1 by 2 log 1 plus x upon 1 minus x base 10. So if fx is equal to 2 to the power x minus 1, where x belongs to closed bracket, semi closed bracket 1 to infinitive to 1 to infinitive. So then find the inverse of this function. So you have to do same. Assume fx is equal to y, then take the log of the both side, then you will get this type of function. Then this is quadratic function. So quadratic, how you can calculate the root of the quadratic function? From the for calculating the root of the quadratic function, you have to find out the Sridharacharya rule. X is equal to x is equal to minus b square plus minus b square minus 4ac upon 2a. So in this way you can calculate this. So you will get x is equal to this. But in the question, the x is the domain, domain of x is given is 1 to infinity. So 1 to infinity is positive, so you cannot take the value of negative. So your option C is correct. So you have, so from the knowledge of brackets and the value of domain and range, you can do this question very easily. तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ब्रैकेट की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें ऑप्शंस में चारों टाइप के आंसर दिए रहते हैं. अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम की पॉइंट, सम नोट्स, like if fx and f inverse x function has symmetric about the y is equal to x line, then this will be exist. There the existence of the fx is valid in this case. And if fx है और f inverse x है, fx का डोमेन d1 है और f inverse x का डोमेन r1 है, तो जो f का रेंज होगा वो f इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा, और जो f इनवर्स x का डोमेन होगा वो f(x) का रेंज हो जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ इंटरचेंजेबल प्रॉपर्टी will apply in this case. Now inverse function has found out only the bijective map. इनवर्स बाइजेक्टिव मैप क्या होता है? बाइजेक्टिव मैप होता है जो 1 1 और ऑन टू होता है. 1 1 ऑन टू क्या होता है हम आगे आपको भी बताएंगे कि 1 और ऑन टू क्या होता है. फिर बात करते हैं मोनोटोनिक फंक्शन. मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? लाइक इफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. Similarly, if f(x) is equal to f inverse x, then you can write f(x) is equal to x and f inverse x is equal to x. So monotonic function का मतलब क्या होता है? If any function like passes through any function which satisfy these two conditions, like f gx and g of x is equal to same, then this type of function is called the monotonic function. Then this is a question which was asked in IIT 2009 and see देखिए कितना आसान है. लाइक इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लिखा है, एफ एक्स की वैल्यू दिया है, देन बोल रहा है कि जी डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एफ एक्स को वाई मान लिया, फिर एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगा. फिर जी एक्स को हमने मान लिया एफ इनवर्स एक्स, तो जी एफ एक्स इक्वल टू जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स आया. फिर डिफरेंशिएट करेंगे और थोड़ा सा टर्म को एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें आंसर मिल के आ जाएगा.
नाउ इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. सो सेम कॉन्सेप्ट, एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू क्या होगा ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2. अब ई एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, ई एक्स इंटू ई एक्स ई टू द पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा और ई टू द पावर एक्स नीचे आ जाएगा. देन ई टू द पावर 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 ई टू द पावर एक्स इंटू वाई. देन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ई टू द पावर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0. सो ये क्वाड्रेटिक हो गया. और यहाँ पे श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे, सी एक्स जो निकाला जाता है माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो वहाँ से हम पहले ई टू द पावर एक्स को y के टर्म में निकाल लेंगे. देन एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स लिख सकते हैं. फिर क्या करेंगे, जो इसका डोमेन और रेंज है उसके बेसिस पे 1 टू इन्फिनिटी पे तो नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे, तो हमारा वही आंसर हो जाता है. फिर अब बात करते हैं मैपिंग क्या होती है. मैपिंग का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कहीं पे, आप किसी डोमेन में आपके पास कोई नंबर है लाइक, और उसकी जो वैल्यू है वो किसी और डोमेन में पाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैपिंग. इसको सिंपली भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई एक वैल्यू है और वही सेम वैल्यू कोई एक वैल्यू है किसी डोमेन पर उसको एग्जिस्ट कर रही है किसी डोमेन में, और सेम वैल्यू किसी और डोमेन में भी पाई जा रही है, तो क्या होता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से मैप है. तो मैपिंग का मतलब यही होता है. अब मैपिंग की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं. जैसे जो डोमेन के सभी एलिमेंट को डोमेन से मैप होने चाहिए, तभी मैपिंग डिफाइंड है. अगर डोमेन के कोई भी एक एलिमेंट अगर डोमेन का कोई भी एलिमेंट बच गया, उसका मैपिंग कहीं नहीं हो रही, उसका एग्जिस्टेंस किसी दूसरे को डोमेन में नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो डिफाइंड नहीं है. और अगर एक से अधिक डोमेन को किसी रेंज में किसी एक ही पॉइंट पर देखा जाता है, तब भी मैपिंग डिफाइंड है. और अगर एक ही डोमेन में किसी एक ही एलिमेंट को अलग अलग एक से अधिक जगहों पर देखा जाता है, मतलब क्या है कि अगर किसी एक डोमेन में कोई वैल्यू ए है लेकिन उसकी मैपिंग को डोमेन में उसी डोमेन में दो जगह हो रही है, तो इसका मतलब वो मैपिंग डिफाइंड नहीं है. फिर टाइप ऑफ मैपिंग कितने प्रकार की होती है. 1-1 मैपिंग जिसको इंजेक्टिव मैप बोलते हैं, ऑन टू मैप जिसको सब्जेक्टिव मैप बोलते हैं. अब इन दोनों को मिला के बाइजेक्टिव मैप बोला जाता है. अगर कोई भी मैपिंग 1-1 और ऑन टू है तो उसका मतलब वो बाइजेक्टिव मैप है, जो हमने बोला था कि अभी आपको बताएंगे. तो आप जान लीजिए कि 1-1 और ऑन टू मैप अगर दोनों एक साथ एग्जिस्ट हो रहे हैं, इसका मतलब बाइजेक्टिव मैपिंग है. इनटू मैप होता है और मेनी वन मैप होता है. अब बात करते हैं कि इनको कैसे हम जान पाएंगे, कौन सा 1-1 है, कौन सा 1-2 है, कैसे है. तो अगर डोमेन के सभी पॉइंट को डोमेन में उनके प्रतिबिंब बन रहे हैं, जिसका मतलब वो 1-1 और 1-2 मैप है. लेकिन अगर जो कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट छूट गया तो उसको बोलते हैं 1-1 इनटू मैप. अब थर्ड आता है कि अगर डोमेन में एक से अधिक एलिमेंट किसी एक ही पॉइंट पे मैपिंग करते हैं, अपना प्रतिबिंब बनाते, इसका मतलब है मेनी वन ऑन टू मैप है. फिर अगर एक से अधिक डोमेन में एक से अधिक एलिमेंट किसी एक ही पॉइंट पे अपना प्रतिबिंब बनाते हैं, अपना इमेज बनाते हैं, लेकिन कोडोमेन के और एलिमेंट को छोड़ देते हैं, एक एलिमेंट दो एलिमेंट छोड़ जाता है, इसका मतलब क्या है मेनी वन इनटू मैपिंग है. फिर 1-1 मैप को हम ग्राफिकली कैसे समझते हैं.
उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन का ग्राफ बना देते हैं, देन ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इफ दिस लाइन कट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट देन इट रिप्रेजेंट द 1 1 मैप। अब इसमें देखिए उल्टा, जो हमने आपको बताया था फंक्शन और फंक्शन रिलेशन में कैसे बताएंगे कौन सा कोई भी गिवन इक्वेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो आपने क्या खींचा था, पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींचा था, अगर एक पॉइंट पे कट कर रही इसका मतलब फंक्शन था, अगर एक से अधिक पॉइंट पर कट करती है तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। इस केस में 1 1 मैपिंग केस में आपको एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचनी है, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब ये 1 1 मैप है। अब बात करते हैं ऑन टू मैप की, इफ़ द गिवन रेंज इक्वल टू ग्राफिकल रेंज देन मैप इज ऑन टू मैप। लाइक अगर y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ दिया और इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी दी है, 0 टू इन्फिनिटी दी। अब यहाँ पे क्या है कि इसका रेंज जो दिया गया 0 टू इन्फिनिटी, अब जो ग्राफ से आपको रेंज मिल रहा है 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका रेंज है। आप इस वाई एक्सिस पे देखिए रेंज कैसे देखा था, वाई एक्सिस पे आपको देखना था, यहाँ पे देखिए कि और दोनों ओपन ब्रैकेट में है, 0 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में है, तो इसकी रेंज कितने की 0 से लेकर के इन्फिनिटी हो गई। अब इसका मतलब क्या है कि यह 1 1 मैप है, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, जैसा आपने 1 1 मैप में देखा। तो इसका मतलब क्या है कि यह 1 1 मैप है और ऑन टू भी है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसलिए यह इसको हम बोल सकते हैं दिस काइंड ऑफ मैपिंग इज बाइजेक्टिव मैपिंग। फिर बात करते हैं इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड आर टू आर मतलब रियल नंबर डोमेन भी है, रियल नंबर रेंज भी है। तो इसका क्या करना है कि आपको बताना है कि ये किस टाइप की मैपिंग है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि हम प्लॉट बना दें, एक्स प्लस साइन एक्स का प्लॉट ऐसे बनता है। अब प्लॉट बनाना कैसे, आप जाके एक बार प्लॉट बनाने के मॉड्यूल को, जब हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ाया था जहाँ पे प्लॉट बनाना कैसे होता है, वहाँ पे जाके आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको एक्स प्लस साइन एक्स का बनाना है। अब प्लॉट बना दिए, अब आप देख रहे हैं कि जो गिवन रेंज है वो ग्राफिकल रेंज के बराबर है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन खींचेंगे, केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब क्या है कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब इसको हम बोल सकते हैं बाइजेक्टिव मैपिंग है। अब जैसे इसका है एफ इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, रेंज दिया -1 to 1, इसका प्लॉट हमने पहले पीछे बनाया था। प्लॉट देख करके आप देख लीजिए, ये 1 1 तो है लेकिन इनटू मैप है। इसका मतलब क्या, जो गिवन रेंज है वो क्लोज्ड ब्रैकेट में है, लेकिन इसकी जो रेंज होगी ओपन ब्रैकेट में होती है, तो इसलिए ये 1 1 इनटू मैप है। इसी प्रकार एफ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5 आर टू आर, देखते हैं ये कभी IIT के क्वेश्चन में आया था, अब क्वेश्चन पेपर में आया था। अब बात करते हैं इस बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, इसको प्लॉट करके देख लेते थे। बाइजेक्टिव है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो एक्स क्यूब माइनस 36 स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10। अब इसकी आपको मैपिंग कैसे बनाना, अब इसका आप क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड करने के बाद आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, फिर उनको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दीजिए। अब एक क्यूबिक है इसलिए 3 पॉइंट से होके जाएगा। अब 3 पॉइंट में से आप पाएंगे कि एक पॉइंट नेगेटिव है और 2 पॉइंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम इनटू मैप है। फिर अब बात करते हैं 1 1 मैपिंग कैसे हम एनालिटिकली देख सकते हैं। अगर y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो हम किस में क्या करते हैं, अगर उस फंक्शन में हम x1 और x2 से रिप्लेस करें, उस फंक्शन में हम किसी भी पॉइंट पे x1 x2 को अलग अलग तरीके से रिप्लेस करें और x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, इसका मतलब है कि वो 1 1 मैप है। फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है तो आप क्या करिए कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू कर दीजिए, मतलब जहाँ x है उसको x1 से रिप्लेस कर दीजिए और जहाँ पे भी और x2 से भी करिए, दोनों को इक्वल करके अगर x1 इक्वल टू x1 मिलता है इसका मतलब 1 1 मैप है। तो फिर बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दोनों को सॉल्व करते हैं तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, x1 इक्वल टू x2 आ जाता है। इसका मतलब ये 1 1 मैप नहीं है, क्योंकि हम जब आप इसका प्लॉट करेंगे तो एक से अधिक पॉइंट पे कट करता है।
इसकी ग्राफ की अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पे देखिए दूसरा जो गुणनखंड है उसमें 1 माइनस x1 इंटू x2 है, उसको अब अगर इक्वल करेंगे तो x1 इक्वल टू 1/x2 आएगा। इसका मतलब है मिनिमम मैप है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ग्राफ से भी अगर ड्रा कर दीजिए, ग्राफ से ड्रा करने का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है, ग्राफ से ड्रा करिए और एक लाइन खींचिए एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक से अधिक पॉइंट पे करता है इसका मतलब मिनिमम मैप है। तो कभी कभी एनालिटिकली से जल्दी हम बना सकते हैं ग्राफिकली, कैसे 1-1 मैपिंग और मिनिमम मैपिंग, ऑन टू मैपिंग को पता लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि डोमेन और कोडोमेन की। इफ़ किसी भी डोमेन में m एलिमेंट है और कोडोमेन में n एलिमेंट है, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग कितनी होगी। तो उसके लिए कुछ केसेस होते हैं। इफ़ m इज़ ग्रेटर देन n, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे मैपिंग, अगर m इज़ ग्रेटर देन n इसका मतलब क्या है कि m में कोई न कोई एलिमेंट बचे हुए, इसका मतलब क्या मैपिंग 0 है। लेकिन इफ़ m इज़ लेस देन n, मतलब n में जो एलिमेंट है वो ज़्यादा है m से, इसका मतलब क्या कि m के सारे एलिमेंट की मैपिंग n में हो जा रही है। तो कितने मैपिंग नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितने बनेंगे, नंबर ऑफ 1-1 मैप कितने बनेंगे, np1। अब npn क्या होता है, npn इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ये परम्यूटेशन का सिंबल है, पर जो हम आपको बताएंगे परम्यूटेशन एंड कम्प्यूटेशन, परम्यूटेशन का जब हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑन टू मैप क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन टू मैप निकालने के लिए n टू द पावर m माइनस n। अब इस प्रकार से आप ऑन टू मैप निकाल सकते हैं। अगर इफ़ एक एग्जांपल, अगर एक जो आपका डोमेन है उसमें ABCD 4 एलिमेंट है और कोडोमेन 1 और 2 हैं, तो नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितना होता है n टू द पावर m माइनस n, मतलब 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ऑन टू मैपिंग कितनी बार होगी, 14 बार होगी। अब 1-1 मैपिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे ये जो कोड डोमेन है वहाँ पे 4 एलिमेंट है, कोड डोमेन में 2 एलिमेंट, इसका मतलब 2 एलिमेंट का 2 एलिमेंट के साथ हो जाएगा, 2 एलिमेंट डोमेन में बच जाएंगे। अब मैंने बोला था कि अगर डोमेन बच जाते हैं, अगर डोमेन में कोई भी एलिमेंट बच जाता है इसका मतलब वो 1-1 मैपिंग नहीं है। डोमेन के सारे एलिमेंट की मैपिंग कोडोमेन में होना ज़रूरी है अगर 1-1 मैपिंग बनाना है तो, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता। अब फिर बात करते हैं कि इसमें हमने आपको इन्वर्स फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, मैपिंग सब कुछ बताया। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर हम आपको बता दें कि अभी तक के हमने मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 9 तक के डिफरेंट चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें होती हैं फंक्शन से रिलेटेड, उस चीज़ को कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो अगर आपको रियली में आप मैथमेटिक्स जानने के इंटरेस्टेड हैं, अब मैथमेटिक्स को इस चीज़ ये बहुत बेसिक से लेकर के हाई लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन जो हाई लेवल की चीज़ें वो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ग्राफिकल मेथड और अन्य तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सो यू कैन think like that, these are the basic and fundamental things that will help you in coming future in future exams, so you can learn this so nicely. And you can also if you think it is helpful for other, then you can share them and you can be a part of this learning platform. So और अगर आप इस सारे मॉड्यूल में चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 बार खुद से रिवाइज करिए। अगर रिवाइज करने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ चीज़ें नहीं समझ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे ही। फिर अब ये चीज़ है कि यहाँ पे चीज़ों को मैं बेसिक से थोड़ा टॉप लेवल तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको हो सकता है पहली बार में नहीं समझ में, इसलिए आपको रिवाइज करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो और लास्ट में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो के में जो पढ़ाए गए कंटेंट है वो अलग अलग जगहों से सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बनाए गए हैं। सभी जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, बीएससी के जो इंट्रेंस होते हैं, जेई मेंस एडवांस होते हैं, यूपीटीयू के होते हैं, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप 9th 10th 11th 12th के भी स्टूडेंट हैं तो भी इन सारी वीडियो के कंटेंट को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार फिर अगर आपने
सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और आने वाले वीडियो को देखते रहिए, खुद पढ़िए, लोगों को भी शेयर करिए जिससे लोग भी इस चीज़ का हिस्सा बन सकें, अच्छी अच्छी जानकारियाँ वो भी प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।